Good morning, students. This is part 3 of chapter 8 motion. Already two parts of the chapter we have discussed. In this part 3, we will learn rest of the topics. Now let me show you what we are going to discuss in this part. We'll discuss 2 points in this part, and they are rate of change of velocity and uniform circular motion. So let me start over here. Rate of change of velocity. See, during uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant. Uniform motion we have already studied in part 2, and the same thing I am telling over you कि अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन की है तो वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म है। और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में है। So it is clear now that during uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. In this case, the change in the velocity of the object for any time interval is 0. Clear? अब if the case is of non-uniform motion, तब क्या होता है? तब velocity varies with time, and the velocity has different values at different instants and at different points of the path. And the change in the velocity of the object during any time interval is not zero. ठीक है, तो ये पैराग्राफ में दो चीजें पढ़ी कि अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ओके, कोई चेंज उसमें नहीं होता है। बट मोशन स्ट्रेट लाइन में है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, तब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है और उसमें चेंज होता है। ओके, तो ये क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसे हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वेलोसिटी का चेंज? वेलोसिटी में चेंज हम पढ़ते हैं पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ओके, तो आगे की स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे। Okay, it's the same thing. To answer such a question, we have to introduce another physical quantity, and that physical quantity is called acceleration, that measures of the change in the velocity of an object per unit time. Okay, so acceleration is change in velocity upon time taken. This is the formula for A. If the velocity of an object changes from u to v and in time t, the acceleration can be given by the formula A is equal to v minus u upon t. This is the formula. Okay, whenever you have to find out the acceleration, you are supposed to use this formula, where v is equal to final velocity and where u is equal to initial velocity and t is the time. This kind of motion is known as accelerated motion, and the acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity. ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है? जब वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, and it is negative when it is opposite to the direction of velocity. The SI unit of acceleration is meter per second square, या मीटर सेकेंड माइनस 2. ओके, सो दिस वाज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का यूनिट और पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। Okay, I think it is clear to you. Now let me move forward. Here this is explained with the help of an example, that is the animation. You can see the car is moving. Okay, and the velocity v, acceleration a. Acceleration is 1 meter per second square. तो आप देख सकते हैं कि एवरी सेकेंड वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है। देखो, एक्सेलरेशन 0 था, वेलोसिटी 0 थी। अब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, एंड देन नाउ इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो क्यों ये चेंज हो रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा पर सेकेंड नोट किया है हमने। So what is acceleration?
acceleration is rate of change of velocity. Okay. If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by an equal amount in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. Okay, and the motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion, the best example of uniformly accelerated motion. On the other hand, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. Non-uniform rate मतलब टाइम इंटरवल है इक्वल है, पर जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में दैट इज नॉट इक्वल, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म रेट। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल लेते हैं। सपोज इफ ए कार इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, कोई स्ट्रेट रोड पर कार जा रही है, इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट्स in equal interval of time, then the car is said to be the moving with non-uniform acceleration. पहले 1 घंटे में कार चलती है 60 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, उसके 1 घंटे में चलेगी 90 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, उसके बाद 1 घंटे में चलेगी 40 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब टाइम इंटरवल तो इक्वल है 1-1 घंटा, लेकिन वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो रेट इक्वल नहीं है। इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। एक एग्जाम्पल आपको दिया है, दैट एग्जाम्पल आई हैव टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। टेक्स्ट बुक आप साथ में लेकर बैठ सकते हैं, so that will be easy to you. टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 103 पर ये एग्जाम्पल है। लेट मी रीड द एग्जाम्पल फॉर यू। द क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ये मीटर सेकेंड -1 का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड -1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ओके, ये दोनों फिगर्स हमने अंडरलाइन कर लिए। नाउ ही अप्लाइज ब्रेक्स such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड in next 5 सेकेंड। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। दो सिचुएशन आपको दी गई हैं कि राहुल साइकिल चलाना शुरू करता है स्टेशनरी पोजीशन से, तो जब स्टेशनरी पोजीशन से वो शुरू करता है तो u कितना होगा? 0 होता है क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी है, और v कितना है यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड, और कितना टाइम है 30 सेकेंड। तो इजीली एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। सी, जो फर्स्ट केस है हमारा, ये ब्लू लाइन से मैंने लिखा हुआ है ब्लू फॉन्ट से। u कितना है? 0। क्यों u 0 है? क्योंकि स्टेशनरी पोजीशन, साइकिल स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, तो u इज इक्वल टू 0। v मतलब फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, और t कितना है? 30 सेकेंड। ये पूरी जो डिटेल्स है दैट आई हैव टेकन फ्रॉम क्वेश्चन इटसेल्फ, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें वैल्यू पुटअप करिए। v का वैल्यू है 6, u का वैल्यू है 0 और t का वैल्यू है 30। तो वैल्यू पुटअप कर दिया। मेरे रेड पेन को फॉलो करते रहिए। अब यहाँ फाइंड आउट करो a का वैल्यू क्या आता है? 6 अपॉन 30, तो a इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी इजी टू फाइंड आउट। जस्ट आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में से u, v, t जो भी क्वांटिटीज दी गई हैं वो निकाल कर पहले सेपरेट रख लीजिए। उसके बाद दोज वैल्यू यू आर सपोज टू keep in formula and see formula is never going to be changed। तो सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास है ये सेकंड केस। सेकंड केस में देखते हैं क्या है। द सेम थिंग वी विल डू। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड है। ओके, क्यों 6 मीटर पर सेकेंड है? क्योंकि जब 6 मीटर पर सेकेंड पर वो जा रहा है साइकिल, उस वक्त वो एक्सेलरेशन लगाता है, ब्रेक लगाता है। तो उस समय हम u लेंगे 6 मीटर पर सेकेंड और उसको हम लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और देखते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या है। फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। जब
ब्रेक लगाए राहुल ने तो वेलोसिटी कम हो गई और वो हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो तीनों चीज आपके पास हैं, u, v और t। अब सेम फॉर्मूला आप लगाइए, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। फाइन, चलो वैल्यूज पुटअप करते हैं। a इज इक्वल टू v का वैल्यू क्या है? 4, u का वैल्यू 6 एंड t का वैल्यू 5। ओके, तो -2 अपॉन 5 दैट इज -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया माइनस में। अब बताओ ये माइनस पॉइंट क्यों होता है? ये माइनस पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव है, इसीलिए ये माइनस पॉइंट आया है। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 103। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। राइट डाउन दीज क्वेश्चंस आफ्टर दिस सेशन इन योर नोटबुक। The first question is, when will you say a body is in uniform acceleration? And the second is non-uniform acceleration. कोई बॉडी कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है और कब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है? आई थिंक द फर्स्ट स्लाइड जो ये वीडियो सेशन का है, इन फर्स्ट स्लाइड्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है। जब वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम तब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड व्हेन वेलोसिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम then it is non-uniform acceleration. Fine. The second is a bus decreases its speed from 80 to 60 in 5 seconds. Acceleration निकालो। Acceleration a is equal to v minus u upon t फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पर v कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। u कितना है? सॉरी, स्पीड घट रही है, आपके पास u है 80, दिस इज u एंड दिस इज v एंड दिस इज t। तो आराम से आप a निकाल सकते हैं, बट ए फाइंड आउट करने के लिए आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना। ओके, तभी आप कैलकुलेशन करना। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। यहाँ भी आपको एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है, द सेम क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर हिंट्स मैंने आपको दिए हैं, चलो देखते हैं क्या हिंट्स हैं हमारे वन बाय वन। फर्स्ट के लिए दिया है, द बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट, तभी हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इफ इट डज नॉट देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म। फाइन। द सेकेंड में यस, यू आपको दिया है, वी आपको दिया है, टी आपको दिया है, तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। फाइन, देखो यहाँ क्या किया है, पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया है। क्यों ऐसा हम करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं, whenever we are going to put the values in any formula, those values should be in same unit. ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है, पर ये सेकंड है, तो यूनिट सेम नहीं है। आप इसको मीटर पर सेकंड में लगाइए तो ही आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? ओके, यहाँ u इज इक्वल टू 0 है। कैन यू से why u is 0? Read the question again and you will find that why u is 0. I think you read it. Let me tell you why it is 0. Because train starting from a railway station, जब ट्रेन स्टार्ट कर रही है उस समय उसका वेलोसिटी 0 होता है, इसलिए u को 0 लिया गया है। फाइन। v is equal to 40 किलोमीटर पर आवर and then t is equal to 10 minutes. यूनिट सेम करने के बाद the same formula you can use and you will get the answer. The second point is uniform circular motion. See, when the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. The change in the velocity could be due to the change in its magnitude or the direction of the motion or both. ये लाइन समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट का जब मोशन आपका कंसीडर कर रहे हैं, उसका वेलोसिटी चेंज होता है, तो वेलोसिटी चेंज होने के रीजन क्या है? दो रीजन है। या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, भाई 5 मीटर पर सेकेंड था तो उससे वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। फाइन, दैट इज नंबर।
या उसका डायरेक्शन चेंज होता है। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट। अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वैल्यू भी चेंज हो जाती है। दो कार का एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाया था। यहाँ ये मोशन अगर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और क्या कारण है चेंज होने का? वेदर द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग और डायरेक्शन इज चेंजिंग, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंजिंग। Can you think of an example when an object does not change its magnitude of velocity but only its direction of motion? Yes, these all are the examples of it. One by one we will discuss. How many times will the athlete have to change his direction of motion while he completes one round? किसमें? ये एक एग्जाम्पल है, इसको सेट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। Let us consider an example of the motion of a body along a closed path. Figure shows the path of the athlete along a rectangular track ABCD. Okay, ये आपका है ABCD, कोई rectangular path है। Let us assume that the athlete runs at a uniform speed on the straight parts AB. यहाँ से शुरू करेगा, AB पर जाएगा, उसके बाद BC, then CD and DA. ओके, और A पर आने के बाद पाथ पूरा क्लोज हो जाता है। In order to keep himself on track, he quickly changes his speed at the corners. देखो यहाँ से A से इसका डायरेक्शन ये था, फाइन। अब जब B पर आता है डायरेक्शन ये हो गया, जब C पर आता है डायरेक्शन ये हो गया, और जब D पर आता है डायरेक्शन ये हो गया। So before this example, I asked you this question: how many times will the athlete have to change his direction of motion while he completes one round? किस में? तो ये रेक्टेंगुलर में। अब काउंट करो कितनी बार चेंज किया, 1 2 3 एंड 4। 4 टाइम उसने चेंज किया, क्योंकि रेक्टेंगुलर के 4 कॉर्नर हैं। ओके, दिस इज द आंसर, 4 टाइम उसने चेंज किया। अब नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ ए रेक्टेंगुलर ट्रैक द एथलीट इज रनिंग अलोंग ए हेक्सागोनल, है ना, ए बी, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, ये हेक्सागोनल के कितने आपको कॉर्नर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 6। अब सपोज वो एथलीट यहाँ दौड़ता है, तो हाउ मेनी टाइम्स ही हैज टू चेंज द डायरेक्शन? वेरी सिंपल, उसका डायरेक्शन चेंज होगा 6 टाइम। ओके, अब हेक्सागोनल की जगह अगर ऑक्टागोनल हो तो, ऑक्टागोन हो तो सॉरी, तो ऑक्टागोन में चूंकि 8 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर उसको 8 टाइम डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हेक्सागोनल में कितने बार उसने किया था? हेक्सागोनल में उसने किया था 6 टाइम। और जब रेक्टेंगुलर था तो रेक्टेंगुलर में कितना टाइम किया था? रेक्टेंगुलर में था यहाँ पर 4 टाइम। तो क्या नोटिस कर रहे हैं आप? जितने कॉर्नर उतना टाइम उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। ओके, it is observed that as the number of the sides of the track increases, the athlete has to take turns more and more. Very important thing, इसको ध्यान से समझ लो, तो जब सर्कुलर मोशन आएगा एकदम से आप पॉइंट पकड़ लेंगे। क्या पॉइंट है? कोई भी ट्रैक आप अगर लेते हैं, उस ट्रैक में जितने साइड्स हैं उतनी बार डायरेक्शन चेंज करने का जरूरत पड़ता है। ओके, अगर सर्कुलर मोशन है तो यहाँ तो कोई साइड ही नहीं है, देखो ये सर्कुलर है। Follow my red pen and you will see this is circular. There are no sides, पूरा का पूरा राउंड है। So how many times you need to change the direction? Infinite times. हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हर पॉइंट पर आपका वेलोसिटी भी चेंज होगा। ओके, चलो रीड आउट करते हैं। As the number of sides of the track increases, the athlete has to take turns more and more often. What would happen to the shape of the track as we go on increasing the number of sides indefinitely? If you do this, you will notice that the shape of the track approaches the shape of a circle
and the length of each of the sides will decrease to a point. If the athlete moves with a velocity of constant magnitude along this circular path, the only change in his velocity is due to the change in the direction of motion. The motion of the athlete moving along a circular path is therefore an example of accelerated motion. And we know that the circumference of a circle of a radius r is given by 2 pi r. ये आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा कि ये जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई आर। कब? जबकि आर इसका यहाँ पर ये रेडियस है। ओके, इफ द एथलीट टेक्स t सेकेंड टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ, तो क्या होता है? इसका रेडियस r है, तो हम इसका स्पीड अब कहाँ से निकालेंगे? इसका स्पीड हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. That is the definition of uniform circular motion. And this is the formula. अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आपको ऐसे याद करने का भी जरूरत नहीं है। If you remember, I told you the formula of velocity v is equal to d upon t. ये तो याद है, distance upon time. ओके, सेम फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कौन सी है कवर करी गई? वो डिस्टेंस है दिस वन, ये जो है, एंड दैट इज 2 पाई आर। तो आप d को 2 पाई आर से चेंज कर सकते, रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपका फॉर्मूला आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक एक्टिविटी दी गई है आपकी, एक्टिविटी 8.1। दिस इज गिवन एट पेज नंबर इन योर टेक्स्ट बुक। See, this is the last topic of the book, and this activity is given at page number 111. You can see it in your textbook also, and let me explain the activity over here. So it is saying that take a piece of thread and tie a small piece of stone at one of its end. Move the stone to describe a circular path with constant speed by holding the thread at the other hand. This is the activity everyone has, I think everyone might have enjoyed in their life. Many times children used to do it. कि एक स्टोन ले लो और उसको एक रस्सी से बांध लो और उसको ऐसे सर पे ले जाके जोर से घुमाओ। अब करना क्या है आपको? लेट द स्टोन गो बाय रिलीजिंग द थ्रेड। कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच स्टोन मूव्स आफ्टर इट इज रिलीज्ड? By repeating the activities for a few times and releasing the stone at different position of the circular path, check whether the direction in which the stone moves remains same or not. आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं अच्छे से, खुद का ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू ओवर हियर कि इफ यू रिलीज द स्टोन एट एनी पॉइंट, it will go in one particular direction, and the direction will not be same anyhow if you release the stone at any other point. Okay, कैसे? चलो देखते हैं आगे। सी, ये स्टोन घूम रहा है, रेड आप डायरेक्शन देख सकते हैं। सपोज आपका यहाँ पर स्टोन आपने रिलीज किया, तो कहाँ जाएगा? ये इधर जाएगा। फाइन। अब अगर आपने इस पॉइंट पर स्टोन रिलीज किया तो द स्टोन विल गो इन दिस डायरेक्शन। अगर आपने इस पॉइंट पर रिलीज किया, द स्टोन विल गो इन दिस डायरेक्शन। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, when you release the stone, the direction of the stone will be different. क्यों? क्योंकि ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ना, दिस इज टेंजेंट उस पॉइंट पर, और स्टोन का डायरेक्शन ये टेंजेंट का डायरेक्शन होगा। ओके, you can read this. Okay, let me read it for you. If you note carefully, on being released, the stone moves along a straight line tangential to the circular path. This is because once the stone is released, it continues to move along the direction it has been moving at that instant. Instant means that particular moment. This shows that the direction of the motion changed at each and every point when the stone was moving along the circular path. Okay? When an athlete throws a hammer or a discus in a sports meet, he holds the hammer or discus in his hand and gives a circular motion by rotating his own body.
ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है कि गिव रीजन व्हाई डज ही डू सो। तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। Once released in desired direction, the hammer or discus moves in the direction in which it was moving at the time it was released, just like the piece of stone in the activity we have discussed. There are many more familiar examples of objects. They are moving under uniform circular motions. For example, motion of the moon, or motion of the earth, or motion of the satellite in a circular orbit around the earth, a cyclist on a circular track at constant speed, and so on. So there are other examples also. Then you can observe from your daily life experience and you can write down. Here you can see nicely it is shown over here. ये आप देख सकते हैं मून का मोशन है अराउंड द अर्थ, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। यहाँ पर सैटेलाइट का मोशन है अराउंड द अर्थ, एंड हियर एन एथलीट इज थ्रोइंग अ डिस्कस, और उसको उससे पहले वो पहले घूमता है और फिर छोड़ेगा। तो इन विच डायरेक्शन द डिस्कस विल गो, that can be explained with the help of the example of the stone. Okay, this is the exercise. Try to solve these questions. All the questions are from your examples only. U, V, T, A, S. These physical quantities, if you can find out from these examples, it is easy to you to solve the questions. At first, do one thing, try to solve those questions without any help. If you feel any difficulty, I am sending you the solved answers. Okay, and even after that also, if you feel there are some doubts, you can call me or you can message me. I will solve your questions, I will solve your doubts. Okay, so thank you students. Now we will meet in part 4 of the chapter, and that part 4 will be the last part of this chapter. Okay, thank you.